SD Public School, Pitampura welcomes you all on this platform of ASGS Dream Big Talks. This Dream Big Talks brings eminent people from different fields who have created niches in the world due to their exemplary work, and they come here to have conversation with young, impressionable minds. So webinar for today is organized in collaboration with Forum of Public Schools Delhi. Forum of Public School is an organization which has its association with more than 90 schools of Delhi, and these are all public schools. So we have with us the patron of the Forum of Public School and the principal of Navbharti School, Shri Sanjay Bhartiya ji. We have with us Ms. Anupama Bhardwaj. She is currently the chairperson of Forum of Public School and principal Jain Bharti Mrigavati Vidyalaya. And I, Anita Sharma, principal SD Public School, welcome all of you along with my colleagues Sanjay Bhartiya ji and Anupama Bhardwaj ji. And we extend our welcome to all students, parents, viewers who are associated, who are connected through various platforms for today's webinar. So children, theme for today's conversation is changing perspective of education in current situation. We have very special guest with us today, our first Deputy Chief Minister and Education Minister of Delhi, Shri Manish Sisodia ji. So we heartily welcome you, sir, and we are very, very grateful to you. Thank you, Anita ji. Thank you very much. It's my pleasure to be here online. Namaskar, namaskar. So there was one physics Nobel laureate, Richard Feynman. You must have heard the name. So when he received the Nobel Prize for physics, he has been asked what is the reason behind his success. And you know, he gave very beautiful answer, very simple but very deep answer. He said that when I was used to go back from school to my home, my mother never asked me that you have learned today. She was always used to ask me, "Aaj tumne kya question pucha? What have you asked today in your school?" So what I want to say is, let's see what is the importance of asking the questions. तो प्रश्न पूछना और प्रश्नों के जवाब लेना और ठीक समय पर ठीक प्रश्न पूछना, अगर हमने ये सीख लिया तो इसका मतलब ये है कि हम ज्ञान के मार्ग पर ठीक दिशा में जा रहे हैं. आप सबसे जो ग्रीक फिलोसोफर हुए हैं एरिस्टोटल, और उनके जो स्टूडेंट थे सोक्रेट्स, आपने सोक्रेट के बारे में सुना होगा कि उन्होंने हमेशा इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग के ऊपर आंसर के ऊपर जो है वो एम्फसाइज किया. और सिर्फ उन्होंने ही नहीं किया, अगर हम अपने भारत की प्राचीन परंपरा को देखें, अगर हम उपनिषद पढ़ें तो उपनिषद क्या है, सारे ज्ञान की परिभाषा उसमें गुरु शिष्य संवाद के रूप में दी गई है. भगवत गीता में कृष्ण और अर्जुन के संवाद में सारी बातें कही गई हैं. तो इसका अर्थ ये है सीधा सीधा कि ज्ञान की गुत्थियां सुलझानी हो या मन की गुत्थियां सुलझानी हो, प्रश्न पूछना, प्रश्नों के जवाब ढूंढना और संवाद करना अति आवश्यक है. और संवाद करने से क्या होता है कि जो वाद है वो विवाद होने से बच जाता है और विषाद अवसाद होने से बच जाता है. तो आज का जो ये वेबिनार है, इसके पीछे हम सबका जो इंटेंशन है वो यही है कि आज के इस कोरोना त्रासदी के दौर में जब हम सब लोग एक अजीब सी दुविधा की स्थिति से गुजर रहे हैं और ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आगे का भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, बहुत सारे प्रश्न हैं इस समय शिक्षक जगत के मन में, शिक्षा के सभी स्टेक होल्डर्स के मन में, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वो विद्यार्थी हैं, चाहे वो अभिभावक हैं, सब कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं. सब अचंभित है, सब स्तब्ध है, सब विस्मित है कि क्या होगा, आगे आने वाला दौर कैसा रहेगा और हमारे बच्चे को इस साल परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या स्कूल खुलेंगे
तो स्कूल खुलने के बाद की परिस्थितियां कैसी होंगी, एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा होगा, खेलने के लिए मैदान मिलेगा या नहीं मिलेगा, बच्चा फ्रेंड से बातचीत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस बच्चों के ऊपर है इस समय। बेचारे बच्चे, मैं देखती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है उनको उनकी फ्रीडम छिन गई है, क्योंकि अब उनको फ्रेंड्स का साथ नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा होगा कि 24 आवर्स आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, उनकी निगरानी में हैं, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, उनका प्यार मिल रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी समस्या है कि थोड़ी देर के लिए जो फ्रेंड्स के साथ में आप बातचीत करके, गपशप करके अपना एक स्ट्रेस रिलीज कर लेते थे, वो कहीं कमी खल रही है सब बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए बड़ी भारी मात्रा में बच्चे हैं। जब हमने मनीष जी का एक लेटर पढ़ा, इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक पत्र लिखा, और वो पत्र लिखने के बाद हमें समझ में आया है कि वो छात्रों के प्रति कितने संवेदनशील है। और ये जो पत्र है ये उनकी चिंता का चिंतन है, ये पत्र नहीं है, मैं इसको चिंतन कहूंगी और दर्शन कहूंगी कि उन्होंने जिस तरह से ये पत्र लिखा है और बच्चों की समस्याओं के बारे में बात करी है, और इस बारे में भी बात करी है कि आगे की शिक्षा का स्वरूप कैसा हो। तो उनका जो ये विजन है, एक एजुकेशन मिनिस्टर के नाते, एक अभिभावक के नाते, एक एजुकेशन फ्रेटर्निटी का पार्ट होने के नाते, ये चिंतन, ये विजन, ये दर्शन, ये सब बच्चों के साथ में शेयर होना चाहिए, हमें ऐसा लगा। और ऐसा लग रहा था कि वो जो उनका पत्र है वो पढ़कर ऐसा लगता है कि वो ये सारे रूप अपनी पूरी समग्रता के साथ विराट रूप से अपने आप में समेटे हुए हैं। वो उन्होंने जो पत्र लिखा है वो केवल एक मिनिस्टर के नाते नहीं लिखा है। अगर आप सब बच्चों ने उस पत्र को पढ़ा हो तो आप ये जानेंगे, अगर नहीं पढ़ा हो तो जरूर उसको पढ़िए, ढूंढिए और पढ़िए, तो आप ये जानेंगे कि उनकी जो चिंता है वो एक पेरेंट की तरह भी है, उनकी चिंता एक टीचर की तरह भी है, उनकी चिंता एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह भी है, और उनकी चिंता एक विजनरी की तरह भी है कि अब आने वाला जो युग है उसमें कैसी एजुकेशन होना चाहिए। क्या हमारी एजुकेशन सिर्फ रोट लर्निंग और एग्जामिनेशन सिस्टम तक सिमट कर रह जाए, या उससे आगे वो जिंदगी के लिए तैयार करे। बंद चार दीवारी से जब बाहर निकले बच्चा, तो वो कैसा बच्चा हो कि वो विश्व में कहीं पे भी हो तो वो अपने आप को अच्छे से एस्टेब्लिश कर पाए, सरवाइव कर पाए, और अपना नाम जो है वो विश्व स्तर पर बना पाए। तो ऐसी सारी चीजों को सोचते हुए हमें ऐसा लगा, सनातन धर्म पब्लिक स्कूल और फोरम ऑफ पब्लिक स्कूल के सदस्यों ने आपस में बैठ करके बातचीत किया, विमर्श किया, और हमें लगा कि अब समय आ गया है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स को ये मौका मिलना चाहिए कि वो माननीय मंत्री जी के साथ में रूबरू हो सके और 1-to-1 बेसिस पर उनसे बातचीत कर सके। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि इसका इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि मैंने जो बच्चों से प्रश्न मंगाए थे वो 1000 से ऊपर प्रश्न आए, तो और लगभग जो है वो 1500 से ऊपर रजिस्ट्रेशन है, और काफी लोग इस समय, हजारों व्यूवर्स हमारे पास फेसबुक से जुड़े हुए हैं। तो अब मैं चाहूंगी कि आपको जल्दी से जल्दी मौका मिले कि आप उनकी बात सुने, मेरी बात सुनने के बजाय। और उनके एक बहुत स्पेशल फ्रेंड और कुलीग हमारे साथ हैं, विनय मिश्रा जी। विनय मिश्रा जी बहुत यंग डायनामिक लीडर हैं, और ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं द्वारका कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं, साथ में मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन इन्होंने कैसे जीवन को देखा और इनका एजुकेशन के बारे में क्या अनुभव है, और इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में माननीय मंत्री जी के साथ में रहकर किस तरह के एक्सपीरियंसेस जुटाए और कैसे ये इनका इंटरेस्ट है एजुकेशन में। अब आप पहले हम इनके विचार जानते हैं, और फिर मैं उनसे ये भी अनुरोध करूंगी कि वे माननीय मंत्री जी को इनवाइट करेंगे आप बच्चों से बातचीत करने के। नमस्कार। ऑनरेबल श्री मनीष सिसोदिया जी, डिप्टी सीएम एंड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ऑनरेबल प्रिंसिपल अनीता शर्मा जी, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ फोरम ऑफ पब्लिक स्कूल्स दिल्ली, और यहाँ आए हुए सभी स्टूडेंट्स, और साथ में स्टूडेंट के साथ साथ बैठे हुए उनके पेरेंट्स, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी हम लोग वेबिनार करते हैं या जूम पे जाते हैं तो अमूमन बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी होते हैं, तो उनका भी स्वागत है। और आज
मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों को एक ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर मिले हैं जो डायनेमिक के साथ साथ एक विजनरी भी है, क्योंकि जब आज पूरा देश जब सारी सरकारें सिर्फ इकोनॉमी की बात कर रही है, मार्केट्स खोलने की बात कर रही है, कैसे हम जो है मॉल्स को खोलें उसकी बात कर रही है, लेकिन हमको एक ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर मिले जिन्होंने बच्चों के फ्यूचर की बात सोची, जिन्होंने बच्चों के एजुकेशन की बात सोची, जिन्होंने स्कूल्स में हम कैसे बच्चों को क्या हम जो एक एप्रीहेंशन पेरेंट्स में था उसके लिए उन्होंने सोचा। तो मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ऑनरेबल मनीष सर के बारे में क्या बताऊं, आप सबको पता है जिस तरीके से जो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, इनके फादर खुद एक टीचर थे, दिल्ली में इन्होंने जर्नलिज्म पढ़ाई की, उसके बाद ये 0R करके एक ऑल इंडिया रेडियो पे एक प्रोग्राम होस्ट करते थे, उसके बाद फिर इन्होंने जी टीवी पे एज ए प्रोड्यूसर और एज ए होस्ट भी काफी जो है प्रोग्राम्स को इन्होंने होस्ट किया। उसके बाद जब इन्होंने देखा जर्नलिज्म करते हुए कि किस तरीके से सरकारों के दरवाजे लोगों के लिए बंद है, लोग सर, जब मैम ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही थी कि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछना चाहिए, तो उसी के लिए जब हमारे सिसोदिया साहब ने देखा कि जब सरकारों के दरवाजे बंद है, हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तब एक एनजीओ लॉन्च करके इन्होंने एक जो है आरटीआई कानून, आपने एक सुना होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आपको बता दो, मुझे बहुत खुशी है कि आज जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अगर किसी ने इस देश को, इस दिल्ली को दिलवाया तो उनका नाम श्री मनीष सिसोदिया है। जब अरुणा रॉय जी ने जब 9 लोगों की टीम का गठन किया आरटीआई के बारे में, उसके डिस्कशन के लिए, उसमें क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, क्या क्या उसमें जो है कैसे हम ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट्स के काम में लाए, तो मनीष जी ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आज आरटीआई कानून आपके सामने, और आज किस तरीके से आप गवर्नमेंट से आप बंद दरवाजे को खोला और गवर्नमेंट से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मनीष सिसोदिया जी को जाता है। आज इनकी लाइफ की बात कहूं, जब इन्होंने आरटीआई देखा, उसके बाद जब इनको लगा कि सिस्टम में चेंज लाना पड़ेगा और सिस्टम सिर्फ बाहर से चेंज नहीं होगा, सिस्टम को चेंज करने के लिए सिस्टम के अंदर आना पड़ेगा, तब जन लोकपाल आंदोलन की शुरुआत हुई और ऑनरेबल हमारे सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ उनका कंधे से कंधा मिला के श्री मनीष सिसोदिया जी ने जन लोकपाल बिल में कंधे से कंधा हिस्सा लिया और 2012 में आम आदमी पार्टी गठन हुआ, उसके पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर बने और 2012 से लगातार 3 बार लगातार चुनाव जीते और आज पतपड़गंज कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी सरकार की अगर मैं बात कहूं, अगर हमारी सरकार के एजुकेशन की अचीवमेंट्स की बात कहूं, तो आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले यूएस के प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में आए थे और हैप्पीनेस करिकुलम आपने देखा होगा, जो अरविंद जी और मनीष सिसोदिया जी का जो एक सपना था बच्चों, क्योंकि आजकल बच्चों में बहुत जल्दी डिप्रेशन आ जाता है, बच्चों में आजकल मानसिक मजबूती के लिए जो देखा तो हैप्पीनेस करिकुलम इन्होंने लॉन्च किया। और मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि यूएस की फर्स्ट लेडी ऑनरेबल जो ट्रम्प साहब की वाइफ आई, तो उन्होंने हमारे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में जाके उस करिकुलम को देखा। आज मुझे लगता है एजुकेशन की बात करूं तो एक कन्वेंशन थ्योरेटिक क्लासरूम अप्रोच मुझे दिखता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम बेस्ड जो अप्रोच होना चाहिए उसकी अगर सोच किसी ने रखी तो मनीष सिसोदिया जी ने रखी। उनका कहना था कि हम बच्चों को स्किल डेवलपमेंट हमारे को करना चाहिए, हमारे बच्चे यहाँ से नौकरी करने नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे यहाँ के स्टूडेंट जो पढ़ लिख के इस देश में लोगों को, बाकी देश के लोगों को नौकरी देंगे। तो ये सोच हमारी सरकार की थी, तो हमने स्किल डेवलपमेंट, आपने देखा हो स्किल करिकुलम लॉन्च किया, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम हमने लॉन्च किया और लेटेस्ट आपने देखा होगा एक देशभक्ति करिकुलम हमने लॉन्च किया। बहुत सारे एमसीडी स्कूल्स और जो हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल थे उसमें मिशन बुनियाद लॉन्च किए, जिससे बच्चों को जो अच्छी एजुकेशन मिल सके। जो हमारे टीचर्स, जो हमारे स्कूल के टीचर्स थे, उनको विदेशों में जाके वहां कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहां कैसे जो है एजुकेशन, वहां का सिस्टम क्या है, एक नई अप्रोच के लिए, एक जो इनोवेटिव आइडियाज के लिए हमारे टीचर्स यहाँ से वहां गए और वहां से जो है ट्रेनिंग लेके आए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद किया। मैं उनको बधाई देता हूं और आज बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एक यूएस में रिसर्च हुआ था जिसमें 20-20 स्टूडेंट्स को 20 का ग्रुप बनाया गया था और उनको 20 को कहा गया कि जो आपका इंटरेस्ट है आप उसमें पढ़ाई करो, उसका काम करो,
और 20 ने चूज किया कि जिसमें आगे जाके हमें अच्छा पैसा, अच्छी नौकरी मिलेगी, हम वो करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उस रिसर्च का रिजल्ट आया तो जो 20 लोग जिन्होंने अपने इंटरेस्ट का काम किया, जो उनके फील्ड का काम किया, जिनमें उनका मन लगता था, वो काम किया, तो वो आज आगे बढ़े। और आप बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए, आप स्टार्टअप्स, मैम ने अभी कहा था, अब मैं गूगल की बात करूं, एप्पल की बात करूं, आज स्टारबक्स की बात करूं, फेसबुक की बात करूं, ट्विटर की बात करूं, बहुत सारे ऐसी कंपनी, ओए, हमारे ओयो आपने देखा होगा, ओयो होटल रूम्स हैं, ये ओला कैब्स हैं। तो ये स्टार्टअप्स है जो इनोवेटिव आइडियाज के, इन्होंने अपने माइंड को कभी भी फील्ड नहीं रखा। फील्ड कहने का मतलब कि सिर्फ इन्होंने जो क्लास में पढ़ा, जो हमने रट्टा मारा, वो फील्ड नहीं रखा, इन्होंने माइंड को फॉर्म किया। तो मेरा कहना ये है कि आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स भी साथ में, कि बच्चों को फील्ड माइंड मत बनाओ, बच्चों को फॉर्म्ड माइंड बनाओ कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, और उसमें कैसे जो जो केस आए या जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, जो हमारे आसपास के समाज में हमें कैसे बिहेव करना है, आसपास की चीजों को देखते हुए हमें कैसे उसको अपने आप को एडजस्ट करना, ये भी सिखाना बहुत जरूरी है। तो मैं आगे सर से रिक्वेस्ट करूंगा, मनीष सर, जो आने वाले, अब जो पोस्ट, आज पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, और आज पेरेंट्स में भी बहुत डर रहा है और बच्चों में भी बहुत डर है, और कहीं ना कहीं आज जो एक गैप आ गया है, मुझे लगता है कि जो हैव्स और हैव्स नॉट में एक गैप आ गया है, क्योंकि जिनके पास मोबाइल है या जहां इंटरनेट है, जिनके पास कंप्यूटर्स है, उनको तो क्लास मिल रहा है, वो तो रेगुलर क्लास कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास डिवाइसेस नहीं है, या जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उनको भी हमें जरूरत है कि इस जो एक हमारा जो एक लय में उनको भी लाने की जरूरत है, उनको भी हमारे को साथ साथ लाने की जरूरत है, ताकि एक गैप ना आए एक हैव्स और हैव्स नॉट में। और उसमें मैं मनीष सर को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि सर ने एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखा, और सर ने कहा कि हम उसमें जल्द से जल्द ऐसी योजना लाएंगे जिससे जो हमारे बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके परिवार में कंप्यूटर नहीं है, उनको भी इन बच्चों के साथ जोड़ा जाए और उनको भी एजुकेशन मिले। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, अब सर आगे जो एक बच्चों में और पेरेंट्स में एक डर है कि कोरोना के बाद कैसे क्लास करेंगे या क्या एग्जाम का शेड्यूल होगा, और मुझे पता है कि सर बहुत ओपन माइंडेड, और सर के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है, और सर का फोकस बहुत हायर एजुकेशन पे है, और वो भी ओपन करने का है, क्योंकि जो हमारे बहुत वैसे रिसर्च बहुत है, पर सर बैठे हैं, तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूँ, सर आप ही आगे इस पर प्रकाश डालें कि आने वाले समय में कैसे बच्चे कोरोना के साथ कैसे हम लोग के बच्चे पढ़ेंगे। और ये सर, ये सिर्फ ये बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को ज्यादा डर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस पे आप प्रकाश डालें, और आने वाले समय में कैसे कोरोना के बाद, कोरोना के साथ कैसे जीना है, कोरोना के बाद कैसे जीना है, और कोरोना के समय में ही बच्चों को कैसे हमारे स्कूल में आएंगे, क्या एग्जामिनेशन उनका सिस्टम होगा, उस पर आप सर प्रकाश डालें। आप मुझे मैम बोलने का मौका दिया, मैं फोरम ऑफ पब्लिक स्कूल्स के तमाम टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ऑनरेबल प्रिंसिपल अनीता जी को धन्यवाद करता हूँ, और सबसे ज्यादा धन्यवाद ऑनरेबल डिप्टी सीएम सर। और डिप्टी सर सीएम साहब, मैं एक आपसे कहना चाहूंगा, मेरे लिए आज बड़ा गर्व का विषय है सर, क्योंकि मेरी प्रिंसिपल, जिस हॉस्टल में मैं था, कलर सत्संगी पब्लिक स्कूल की जो हमारी प्रिंसिपल थी, वो भी आज इसमें सर लाइन है। तो मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय कि हमारी प्रिंसिपल इसमें है। तो मैं उनको भी थैंक्स करता हूँ मैम कि आज आपने स्ट्रीट स्मार्ट बनाया, आपने पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों को स्ट्रीट स्मार्ट भी बनाया, जो आज हम लोग कैसे जो है समाज में जिए। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब नाउ सीधा श्री मनीष सिसोदिया सर, थैंक यू। धन्यवाद मेरे कलीग और मेरे काबिल दोस्त विनय मिश्रा जी, और साथ साथ हमारे फोरम फॉर पब्लिक स्कूल के पैटर्न संजय जी, हमारी इस प्रोग्राम की मैं कहूँ कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने इस प्रोग्राम को करने के लिए बहुत मेहनत की है, अनीता शर्मा जी मैडम प्रिंसिपल, फोरम फॉर पब्लिक स्कूल्स की अनुपमा मैडम, और प्यारे बच्चों, सभी टीचर्स, सभी पेरेंट्स, सबको मेरा नमस्कार। मैं जानता हूँ घर में बैठना सबसे मुश्किल काम है। जब स्कूल चलते थे उस वक्त किसी बच्चे से कहो कि एक दिन की छुट्टी मारनी है, किसी टीचर को बोलो एक दिन के लिए घर बैठ जाओ, तो ऐसा लगता था बस मजे आ गए, नहीं। लेकिन ऐसा होता था? हाँ, बच्चे देखो सब सर हिला रहे हैं कि हाँ ऐसे ही होता था। मंडे की सुबह सबसे भारी लगती है स्कूल एज में, लगता है इस जिंदगी में मंडे आता है क्यों है, सारी दुनिया फ्राइडे पे आके और सैटरडे संडे में सिमट के खत्म क्यों नहीं हो जाती है, सैटरडे संडे पे आके कोई पॉज क्यों नहीं लग जाता है, संडे पे खासतौर से। तो मंडे की सुबह सबको भारी लगती है। लेकिन
इत्तेफाक से सारी दुनिया के बच्चों के लिए, सभी टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए एक ऐसा समय आ गया है कि सब उस मंडे का इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो वो मंडे ले आओ यार जिस दिन स्कूल जाने का मौका आ जाए। सही बात है कि नहीं? आपकी आवाज सब तक, मुझे लगता है मॉडरेटर्स ने, ऑफ कोर्स 1000 लोग अभी इस वक्त यहाँ ऑनलाइन है और करीब कई हजार लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो सबकी आवाज मेरे तक आना संभव नहीं होगी, लेकिन मैं बहुत सारे फेसेस देख पा रहा हूँ, बहुत सारे क्यूट फेसेस, बच्चे पेरेंट्स के साथ भी बैठे हैं, सिबलिंग्स बैठे हुए हैं, टीचर्स बैठे हैं, आई कैन सी। तो आपके स्माइल्स, आपके जो इंटरेक्टिव पार्टिसिपेशन है, बॉडी लैंग्वेज वो मुझे बता रही है कि आप इस बात से सहमत हैं कि अब हम सबको उस मंडे का इंतजार है। और अभी तो कभी कभी ऐसा, मैं कई जगह बच्चों से बात करता हूँ इस तरह के ग्रुप में, बच्चे कहते हैं अब तो सर जिंदगी में सोचेंगे नहीं, संडे सैटरडे आना भी चाहिए, बहुत हो गया, बस किसी तरह से स्कूल ले चलो हमको, दोस्तों से मिले हुए, मस्ती किए हुए बहुत समय हो गया। बहरहाल आज का ये इंटरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए भी, क्योंकि जब भी मैं इस तरह के किसी इंटरेक्शन में शामिल होता हूँ तो मेरा मकसद ऐसा नहीं होता कि मैं बच्चों को कुछ बता दूं या टीचर्स को कुछ बता दूं, बल्कि बातचीत करते हैं और बातचीत करने में मुझे भी फिर बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलता है। कोरोना का समय सारी दुनिया के लिए, हम सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बहुत टफ टाइम है, और शायद ही मानव जाति के इतिहास में कभी ऐसा समय आया हो जब सारी सुविधाएं, हवाई जहाज, रेल, मार्केट, सब कुछ बंद कर देने पड़े हों, लोगों के घर से निकलना सारी दुनिया में बंद कर देना पड़ा हो। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू नाम की एक बीमारी हुई थी, सुनते हैं, उसमें बहुत उसने बड़ी तबाही मचाई थी, वो भी 90% लोगों को हो गई थी दुनिया में, लेकिन इतनी भयावह परिस्थितियां उस वक्त भी नहीं हुई थी जितनी अब हुई हैं। लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल रहा है, खुल गया है, इकोनॉमी धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है, मार्केट खुलने लगे हैं, आप लोग भी थोड़ा बहुत तो घूमने बाहर निकले ही होंगे, लेकिन और अभी सब तरफ बात की जा रही है भाई कोरोना के साथ जीना सीखना है, कोरोना की कोई ना कोई वैक्सीन भी आ जाएगी, कोई दवाई आ जाएगी, वैक्सीन जब तक आएगी आएगी, लेकिन उस वक्त तक कोई ट्रीटमेंट प्लान, कोई उसकी दवाई आ ही जाएगी कोरोना की कुछ समय बाद। लेकिन एजुकेशन का जो नुकसान हुआ है उसकी कोई दवाई नहीं आने वाली। एजुकेशन का जो नुकसान हो रहा है आज की तारीख में, उसकी कोई वैक्सीन नहीं बनने वाली है फ्यूचर में। ये नुकसान तो हो गया, हम सब ने मिलकर, टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने, स्कूल के लोगों ने, सब ने मिलकर कोशिश की है कि जब नुकसान हो रहा है तो मिनिमम डैमेज हो ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से घर पर, लेकिन फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि नुकसान हुआ है, बहुत हुआ है। और ये नुकसान आज जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं या जितने सुन रहे हैं हमारे इसको, ऐसा नहीं है कि बच्चों को इंडिविजुअली हुआ है, आप सोच के देखिए कि इस देश को और समाज को बहुत नुकसान हुआ है। आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, अलग अलग तरीके के लोग प्रोफेशंस के इस देश को मिलेंगे, उनकी एजुकेशन में ये 3 महीने माइनस होंगे, क्वालिटेटिवली माइनस होंगे। उस क्वालिटी को, क्योंकि आप सब लोग जो मेरे सामने बैठे हैं कल इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कहीं मैनेजर बनेंगे, जाके कहीं किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, कहीं किसी कंपनी को चला रहे होंगे, कहीं एग्जीक्यूटिव होंगे, तो आप सब लोग 4-5 साल बाद के एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। आप सब लोगों की एजुकेशन अगर 3 महीने कम रह गई तो 4 साल बाद, 5 साल बाद जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे, 8 साल बाद, तो वहां आपके काम करने में इसका नुकसान आएगा। तो मैं आप सब लोगों से सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूं कि एक जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है कि जो 3 महीने का घाटा हुआ है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं आने वाली है कि लीजिए अब इसको, वैक्सीन को ले लीजिए और ठीक हो गया। इसके लिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा काम इस पे करना पड़ेगा। और एजुकेशन को एकदम, खासतौर से क्योंकि बहुत टीचर्स और प्रिंसिपल्स भी मेरे साथ में आज बैठे हैं, हमें एजुकेशन को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। हमें सबसे पहले तो एजुकेशन को यूज करना पड़ेगा कि लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा हो कि कोरोना के साथ जिया जा सकता है। अभी कोरोना का नाम लेते ही लोगों को मरने का डर लगता है, अभी कोरोना का नाम लेते ही लोगों को लगता है अरे कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, हम पे कोई आफत आ गई। बिल्कुल नहीं, कोरोना एक बीमारी है जैसे और बीमारियां होती हैं। कोरोना एक फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, जो बाकी इन्फ्लुएंजा की तरह है, उसके कुछ अलग इम्पैक्ट हैं। हमें कोरोना के साथ जीना सीखने में और समझने में इसको
एजुकेशन सिस्टम की मदद लेनी पड़ेगी। एजुकेशन सिस्टम को, पूरे के पूरे एजुकेशन को ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि हम समाज को, अपने पेरेंट्स को, खुद को कोरोना के साथ जीने के लिए तैयार करें। जैसे किसी जमाने में टीबी, ट्यूबरक्लोसिस एक नई बीमारी आई थी, आज हम चैप्टर्स में पढ़ते हैं ना, एड्स, हेपेटाइटिस, अभी एड्स की और हेपेटाइटिस सी की तो कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है, लेकिन आज हम एजुकेशन में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उसके बारे में अवेयर करते हैं और उसके साथ जीना सिखाते हैं। वैसे ही हमको एजुकेशन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम कोरोना के साथ लोगों को जीना सिखाएं, उसके बारे में अवेयर करें। तो सबसे पहला काम तो यही करना पड़ेगा। दूसरा, जिसका जिक्र अभी अनीता जी भी कर रही थी, कि मैंने इस मौके को, जब 3 महीने बंद रहा और जब स्कूल खुलेंगे तो एक सब लोगों के मन में आशंका है कि कैसे खुलेंगे, किस रूप में खुलेंगे। कब खुलेंगे का आंसर तो नहीं है, लेकिन कैसे खुलेंगे, किस रूप में खुलेंगे, इसकी तैयारी हमको करनी पड़ेगी। वो चाहे 2 महीने बाद खुले, 1 महीने बाद खुले, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कभी तो स्कूल खुलेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खुलेंगे। तो उसको नए सिरे से सोचने के क्रम में मैं समझता हूं, एक तो कुछ हमें पुरानी कमियों को दूर करने का मौका है और नई परिस्थितियों में कुछ नया करने का मौका है। नई परिस्थितियों में बार बार बात होती है, भाई ऑनलाइन सिस्टम पे हम पढ़ाएंगे। पुरानी परंपरा में भी हम बात करते थे, हम क्लासरूम को हाईटेक कर दें, हम ऑनलाइन क्लास ले लें, लेकिन जब हम पोस्ट कोरोना एजुकेशन को देखें तो हमें ये मानना पड़ेगा कि एजुकेशन का, पर्सनल एजुकेशन का, टीचर के साथ, अपने कलीग्स के साथ बैठ के क्लासरूम में पढ़ने का, स्कूल में जाने का सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी नहीं हो सकती है। ऑनलाइन एजुकेशन उसके कुछ गैप्स को भर सकती है। जब हम स्कूल में जाते हैं, अपने पेयर्स के साथ में बैठ के क्लास में टीचर्स के साथ बैठ के कुछ सीखते हैं, टीचर की आई टू आई, 1-to-1 कॉन्टेक्ट में अपने दोस्तों के साथ में बैठ के सीखते हैं, उसके कुछ गैप्स हो जाते होंगे। उस गैप्स को ऑनलाइन एजुकेशन भर सकती है। कोरोना जैसी महामारी के समय पे ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लास का एक सब्स्टिट्यूट बन के आ सकती है, लेकिन ये पर्सनल एजुकेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती है। तो ये जब भी हम बात करें कि कोरोना के बाद स्कूल कैसे होंगे, तो हम अपने मन में गांठ बांध के रख लें कि कोरोना के बाद के स्कूल में कहीं भी ये मौका नहीं आना चाहिए। इस पे जोर, ऑनलाइन एजुकेशन पे जोर हो सकता है, लेकिन हमारी स्वीकृति में ये ना आए कि नहीं, अब ऑनलाइन एजुकेशन क्लास एजुकेशन को सब्स्टिट्यूट कर देगी, उसको उसकी जगह ले लेगी, कभी नहीं ले सकती है। दूसरा, मुझे ऑनलाइन एजुकेशन के इस कई जगह मुझे समाज में दिख रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन को लेके काफी पूर्वाग्रह है। नहीं, अब एजुकेशन ऑनलाइन होनी चाहिए, घर पे बैठ के पढ़ा देंगे। ये ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम अच्छा लगता है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन कहीं ना कहीं एक डिजिटल डिवाइड भी पैदा कर रही है। हमारे समाज में छुआछूत की बीमारियां थी, छूने और ना छूने के ऊपर कई समाज के वर्ग बांटे हुए थे हमने। फिर धीरे धीरे वो खत्म हुआ तो आर्थिक हो गया, गरीब लोग, अमीर लोग, सेमी गरीब, सेमी अमीर लोग हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक नया क्लासिफिकेशन समाज में खड़ा कर दें, और वो होता दिख रहा है मुझको। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसको डिस्कोर्स में रखें। जब भी हम अपने स्कूल के बारे में, एजुकेशन के बारे में नए सिरे से सोचें, तो ऐसा ना हो कि हम पूरी की पूरी नेक्स्ट जनरेशन को 3 हिस्सों में बांट दें। वो लोग जिनके पास डिजिटल संसाधन अच्छे से मौजूद थे, वो लोग जिनके पास डिजिटल संसाधन काम चलाऊ तरीके से मौजूद थे, और वो लोग जिनके पास डिजिटल सुविधाएं बिल्कुल मौजूद नहीं थी। समाज कहीं फिर से 3 हिस्सों में ना बट जाए, हाईली डिजिटली एजुकेटेड, सेमी डिजिटली एजुकेटेड और डिजिटली इलिटरेट। कहीं ऐसा ना हो कि समाज इन 3 हिस्सों में फिर से बट के रह जाए। तो ये हमें एक कंसर्न है। दूसरी एक परंपरागत सोच जो मुझे अब नए दौर के एजुकेशन पर अभी भी हावी दिख रही है, और उसमें मैं चाहूंगा कि बच्चे भी इसमें इस समझ को बनाने में योगदान दें, वो ये है कि कहीं ना कहीं स्कूल सिस्टम, मेरी बहुत प्रिंसिपल से भी बात हुई है, बहुत एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात हुई है, कई लोग मेरे पास आते हैं कि जी चारों तरफ जिस तरह का माहौल चल रहा है, कुछ क्लासेस को प्रायोरिटी दे दो। उनका आशय होता है कि साहब स्कूल जब खोलें तो आप 10वीं 12वीं के बोर्ड के रिजल्ट, बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, तो आप ऐसा करिएगा 10वीं 12वीं को तो ठीक से खोल दीजिएगा, बाकी को ऐसे ही काम चलाओ खोल दीजिएगा। नहीं, ये गलती नहीं करनी। 6th क्लास में जो बच्चा पढ़ता है, उस एज में उसके पढ़ने के लिए जो एजुकेशन चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो अगर उसने वहां मिस कर दी तो 4 साल बाद वो 10th में भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा।
अगर आज हम ये सोचकर कि नहीं नहीं प्रायोरिटी क्लास तो हमारी बोर्ड की क्लासेस हैं, तो 10th और 12th को प्रायोरिटी दे देते हैं, और 6th 5th का क्या है तो सब कर लेंगे, घर पे बिठा के कर लेंगे, बच्चे कुछ होमवर्क दे दिया करेंगे। नहीं, जब भी हम बात करें कि नए दौर के, कोरोना के दौरान के दौर के और उसके बाद के दौर के स्कूल्स कैसे होंगे, तो उसमें ये सोचने की गलती ना करें कि नहीं कुछ प्रायोरिटी क्लासेस हैं उनको तो हम प्रायोरिटी देंगे, जो कन्वेंशनली हम बोर्ड की क्लासेस को प्रायोरिटी क्लासेस मानते हैं, और नॉन बोर्ड की या जूनियर क्लासेस को हम छोड़ देंगे कि ठीक है आराम से 4 महीने और बंद रह लो, नुकसान हो जाएगा। 6ठी क्लास में, 5वीं क्लास में, 3री 7वीं क्लास में जो सीखने की जरूरत है, वो अगर उस क्लास उस उम्र में ठीक से नहीं पढ़ाया गया तो हमेशा के लिए एक डेफिशिएंसी पैदा हो जाएगी। आने वाली जनरेशन्स में एक बड़ी डेफिशिएंसी हमको देखने को मिलेगी अगर हमने ये गलती कर दी कि हम कुछ प्रायोरिटी क्लासेस को ऑनलाइन एजुकेशन में प्राथमिकता देंगे, तो यहाँ हम फंस जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। अनिता जी जिक्र कर रही थी, मैंने एक चिट्ठी लिखी है अभी भारत सरकार को, उसमें भी और आमतौर पे भी मैं जो बात कर रहा हूँ, 2-3 बातें कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं वो बातें रख के सोचता हूँ कि कुछ समय आपके साथ बातचीत का भी मुझे मिले। मैं उसमें मैंने भारत सरकार को लिखा है कि एक तो अभी जो एग्जाम होने वाले हैं, इन एग्जाम्स को मेरी राय में अब कराने का समय नहीं है। जो मार्च अप्रैल में एग्जाम होने वाले थे, आइडियली जैसे हमने 9th और 11th में बच्चों को पास किया उनके कंटिन्यूस इवैल्यूएशन के आधार पर, एक कड़ा निर्णय लेकर, क्योंकि लॉकडाउन जैसा कड़ा निर्णय लिया, हमने कहा 2 महीने तक कोई घर से नहीं निकलोगे, सारे मार्केट बंद हो जाएंगे, हवाई जहाज ट्रेन बंद हो जाएंगे, सब कड़े निर्णय थे। तो एक कड़ा निर्णय लेके हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हम सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के जो पेपर्स रह गए हैं उनमें बच्चों को किसी लॉजिक, किसी एल्गोरिदम के आधार पर पास कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्कूल शायद खुलने के लिए तैयार नहीं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है। दूसरा रिक्वेस्ट मैंने उनसे ये किया है कि जो मैंने अभी जिक्र किया जिसका, कि जब भी आप स्कूल खोलने के बारे में प्लान बनाएं, इस कन्वेंशन में ना आ जाएं कि 10वीं और 12वीं ही प्रायोरिटी की कक्षाएं होती हैं और बाकी सब नॉन इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप्स हैं, नॉन इम्पॉर्टेंट क्लास ग्रुप्स हैं। हर उम्र, हर क्लास का बच्चा, हर उम्र, हर क्लास के बच्चे के लिए उसकी वो क्लास, उसकी वो सीखने की उम्र उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी 10th और 12th के बच्चे के लिए उसकी उम्र और उसकी क्लास इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी उसमें ना आ जाए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आप 30% सिलेबस कम कर दीजिए। आप जो कंपटीशन एग्जाम्स होंगे अभी 12th के बाद बहुत सारे बच्चों को देने हैं, उन एग्जाम्स का सिलेबस कम कीजिए, अगले साल के लिए भी सिलेबस कम कीजिए, क्योंकि अभी जो आप बच्चे 12th में 11th क्रॉस करके 12th में आए हैं उनको कहीं ना कहीं अब आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ है। तो IIT JEE जाने से लेकर CPM जो नीट और बाकी क्लैट और इन सब एग्जामिनेशंस के लिए जो भी एग्जाम हो उसका सिलेबस भी कम कर दें। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने उसमें सुझाव दिया है इनको, वो मैंने कहा है कि आने वाले समय के लिए, लंबे समय के लिए बड़े सुधार करिए, और दुनिया ने वो, कई देशों ने वो सुधार पहले किए हैं अपने स्कूलों में। ये जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है कि हम साल के अंत में एक परीक्षा लेंगे और बच्चे को पास या फेल घोषित करेंगे, उसमें बदलाव कर दीजिए। बच्चा क्लास के डे 1 से कुछ ना कुछ सीख रहा है और आप रोज उसको, जैसा अभी मैडम ने जिक्र किया, उसकी माँ रोज उनको इवेलुएट करती थी। इस पे नहीं कि आज क्या पढ़ के आए, इस पे नहीं कि क्या सीख के आए, इस पे करती थी कि आज क्या पूछ के आए। वो डेली कंटिन्यूस इवेल्युएशन था उनकी माँ का। वैसा ही कंटिन्यूस इवेल्युएशन हमारे टीचर्स रोजाना किसी टेस्ट में, किसी बातचीत में, किसी चैप्टर को पढ़ाने में, किसी को पढ़ने में, किसी एक्टिविटी में, रोज किसी ना किसी में करते हैं। उस कंटिन्यूस इवेल्युएशन को फॉर्मल बनाइए। और ये जो हम 3 घंटे की परीक्षा में तय कर देते हैं कि बच्चे ने मैथमेटिक्स सीखा कि नहीं सीखा, ठीक से उसको आया कि नहीं आया, बच्चे ने साइंस सीखी कि नहीं सीखी, बच्चे ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज सीखा कि नहीं सीखा, वो अनफेयर है। दुनिया के बहुत सारे देश इसको अनफेयर घोषित करके इससे आगे बढ़ चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हम भी इससे आगे बढ़ें। कंटिन्यूस इवेल्युएशन रहे, उसमें लास्ट में भी आपका कोई एग्जाम रखना है आपको, वो भी रखें, लेकिन उसकी वैल्यू द वैल्यू ना हो। आज आपने सारे साल पूरी मेहनत करके पढ़ाई की, आपने सारे टेस्ट, सारे इवेल्युएशन, सारे टीचर्स के क्वेश्चन आंसर, सारी एक्टिविटीज में खूब पार्टिसिपेट करके अपना सब कुछ दिया।
किसी कारणवश चुने गए 10, 15, 20 क्वेश्चंस की बदौलत आपके नंबर कम हो जाते हैं तो जिंदगी भर आपके लिए नंबर कम का स्कोर आ गया, आपकी पूरी साल की मेहनत बेकार। अगर किसी कारणवश आप फेल हो जाते हैं तो आप फेल हो गए, जबकि पूरे साल आपने खूब मेहनत की थी। तो एक बड़ा चेंज जिसकी मैं आज वकालत करने के लिए आप सबके पास आया हूं और बात करने आया हूं, मैं चाहता हूं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ इस पर चर्चा करना शुरू करिए और डिमांड करना शुरू कीजिए। जब भी जो मिले, कोई नेता मिले, कोई टीचर मिले, कोई एजुकेशनिस्ट मिले, आप डिमांड करना शुरू कीजिए अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगता है कि हमें अब कंटिन्यूस इवैल्यूएशन चाहिए। ये वन टाइम एनुअल इवैल्यूएशन से दुनिया आगे बढ़ चुकी है, इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को भी इससे आगे बढ़ जाना चाहिए। हम जब मेहनत पूरी साल करते हैं, पढ़ाई पूरी साल करते हैं, तो एग्जाम आखिर के 3 घंटे में क्यों? और हमारी सारी मेहनत का नतीजा उस आखिर के 3 घंटे के पेपर पे क्यों? पूरे साल की हमारी मेहनत को इवेल्युएट करिए ना। हम क्लास में आए कि नहीं आए, हमने क्लास में पढ़ने में पार्टिसिपेशन ठीक से किया कि नहीं किया, प्रैक्टिकल्स में ठीक से पार्टिसिपेशन किया कि नहीं किया, हमने एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन ठीक से किया कि नहीं किया, अपने पीयर्स के साथ मेरे बिहेवियर, लर्निंग पैटर्न्स को लेकर, ग्रुप डिस्कशन से लेकर ग्रुप वर्क तक को लेकर, यूनिट टेस्ट से लेकर मेरे जो भी आपके क्वार्टरली और उस तरह के टेस्ट होते हैं, उन सब चीजों को आप इवेल्युएशन फॉर्मेट में रखिए और साल के अंत में कोई और भी परीक्षा लीजिए तो उसका भी 10%, 5% इवेल्युएशन में रखिए और उस सब के आधार पे आप मुझे इवेल्युएट करके कीजिए कि अब आप 12th पास कर गए, अब आप 11th पास कर गए। 11th पास मेरा सिर्फ 3 घंटे, 5 सब्जेक्ट के 3-3 घंटे के पेपर्स पे कैसे हो सकता है? ये मैंने बड़ा चेंज लाने के लिए इनसे कहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर एक नेशनल डिस्कोर्स पैदा होगा। आगे के लिए एक नया दरवाजा हमारे एजुकेशन के लिए खुलेगा। सुकरात के बारे में मैडम ने बात की थी। सुकरात की एक बहुत खूबसूरत बात ये थी जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि वो कहते थे कि कोई आदमी अगर मेरे सामने मौन खड़ा हुआ है तो मैं उसकी शिक्षा के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो कहाँ से पढ़ा लिखा है, कौन उसका गुरु रहा है, किस परिवार, किस समाज से आता है। लेकिन कोई आदमी मेरे पास खड़े होकर 5 मिनट अगर बोल जाए, कुछ भी बात कर ले, तो मैं उसकी शिक्षा, उसके गुरु, उसके इंस्टीट्यूशन, उसके परिवार, उसके खानदान, सबके बारे में बता दूंगा ये कहाँ से आता है। ये ऐसा उनके बारे में कितना सच कितना झूठ, लेकिन उनके बारे में प्रचलित है कि सुकरात ऐसा कहते थे कि आप मेरे से 5 मिनट बात कर लो, मैं आपका पूरा बायोडाटा, पूरी जन्म कुंडली निकाल के दे दूंगा आपके सामने। ऐसा सुकरात का दावा था। तो एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने का नाम नहीं है। एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन डिग्री के आधार पर नौकरी करने का नाम नहीं है। एजुकेशन जीने का एक अंदाज है। उस जीने के अंदाज में सब चीजों का परिचय है, आपके स्कूल का, आपके टीचर्स का, आपकी फैमिली का, सब कुछ का परिचय मिलता है। तो मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस टफ टाइम में भी आप खूब मेहनत करके अपना करियर बनाएं, लेकिन करियर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बने, एक अच्छे नागरिक बने, परिवार के एक अच्छे मेंबर बने। मैंने अनीता जी को बोल रखा है कि मुझे 4:45 पे निकलना है, एक कोई मीटिंग भी है मेरी उसके बाद में, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में अभी लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के लिए चाहता हूं, कुछ बच्चों से कुछ क्वेश्चंस अगर आप। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्रीमान मनीष सिसोदिया जी को स्नेह भरा नमस्कार करती हूँ और आपका अभिनंदन है सर। बहुत बहुत आभार, आपने बच्चों के लिए इतना अपने कीमती समय में से उनके लिए समय निकाला। कि महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बच्चों की जीवन की पाठशाला में प्रवेश हुआ है और इस समय उनके मन मस्तिष्क में जो हजारों प्रश्न हैं, सवाल हैं, जिज्ञासाएं हैं, जिनका वो समाधान आपसे चाहते हैं। अतः मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने मुखारविंद से उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने की कृपा करें और मुझे अनुमति दें कि मैं विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रश्न हेतु आमंत्रित। जी क्विकली कर लें, 2-3 क्वेश्चन ले लें, फिर मैं आंसर दूंगा। ओके। सर्वप्रथम मैं मनस्वी चतुर्वेदी, जो कि एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क की कक्षा 8वीं की छात्रा है, उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना प्रश्न पूछे माननीय मुख्यमंत्री जी से।
Good evening, respected sir. My name is Manasvi. I study in class 8 in the Air Force School, Subrata Park. My question to you is that my parents earlier used to say that the internet is not a safe place for me. But now they're telling me to attend online classes which are on the internet. So, how is this possible that the place was unsafe for me earlier is now safe for me? हाँ जी मनस्वी आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी. कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आई कैन हियर. हाँ जी बेटा आप अपने क्वेश्चन को रिपीट करो. Yes, ma'am. हाँ जी. My question was that earlier my parents used to say that the internet is an unsafe place for me. But now they're telling me to attend online classes which are on the internet. So, ma'am, how is this possible that the place was unsafe for me earlier, but now suddenly it is safe for me? ठीक है. नेक्स्ट अभी आप और कुछ क्वेश्चंस ले लें अनुपमा जी. मैं एक साथ. ठीक है सर. और नेक्स्ट बच्चा है ये अर्पिता भगत है, कर्नल संगीत किरण मेमोरियल स्कूल से, जो कि कक्षा 12वीं की छात्रा है. जी बोलिए बेटा. My name is Arpita Bhagat. I'm in the standard 12 from CSKM Public School. So my question to you is, what are the plans to facilitate the process of schooling post-August? स्कूल खोलने के बारे में अगस्त के बाद के क्या प्लान्स हैं? That's what you are saying? Okay. थोड़ा अगस्त. हाँ ठीक है. हाँ जी. नेक्स्ट है सर श्री सनातन धर्म सरस्वती बाल मंदिर पंजाई बाग से कीरत शर्मा, जो कि 11th क्लास से हैं. Sir, I am Kirat Sharma, and in this pandemic situation, many channels and groups are sending irrelevant things or rumors regarding change in syllabus or education system. Sir, how could you stop that, sir, please? Okay. और नेक्स्ट ले सर हम. हाँ 3-4. ओके. साधु वासवानी इंटरनेशनल स्कूल फॉर गर्ल्स से प्रियांशी गिल हैं, जो कि क्लास 9th की हैं स्टूडेंट. इसको बड़ा कर दे. हाँ जी. अच्छा, अगली अगर प्रियांशी गिल नहीं है, अगला बच्चा जो है वो नव भारती पब्लिक स्कूल से है, अंशिका गुप्ता, जो कि क्लास 12th की छात्रा है, नव भारती पब्लिक स्कूल. नमस्कार, मेरा नाम अंशिका है. मैं नव भारती पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ. यस अंशिका. मेरा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह प्रश्न है कि लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलने के बारे में बहुत अनिश्चितता का माहौल व्याप्त है, जिससे छात्र छात्राएं एवं हमारे माता पिता बहुत चिंतित और आशंकित हैं. मेरा पहला प्रश्न यह है, क्या ऑनलाइन टीचिंग भविष्य में स्कूलिंग के लिए एक नया नॉर्म बनने जा रहा है? और दूसरा प्रश्न यह है, आने वाले समय में शिक्षा में होने वाले परिवर्तनों के लिए बच्चों को किस प्रकार से स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एसटी पब्लिक स्कूल से उर्वशी है पीतमपुरा, वो अपना प्रश्न रखें. एसटी पब्लिक स्कूल उर्वशी अपना प्रश्न रखें. नेक्स्ट है जैन भारती मृगावती विद्यालय से हिमांशी सैनी. उर्वशी is there. Good evening, sir. This is Devanshi Mahajan from SC Public School. A warm greeting to you, sir, for attending us. My question is that how is the government planning to earn back the confidence of parents to send their kids back to the school after this pandemic settles? Okay. एक और जैन भारती मृगावती विद्यालय से हिमांशी सैनी है, वो अपना प्रश्न रखें. हिमांशी सैनी. Namaskar, sir. I'm Himanshi Saini of class 10 from Jain Bharati Megavati Vidyalaya.
My question is that it is related to our present scenario. Will there be a change in study pattern, like introduction to television channels for educational purposes, to make learning a better experience for students? Right. So, Anupamati, I can answer these questions and then maybe we can have a small round. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. So I'll try to answer some of the questions because some of them I have already answered. जी. So I'll start in reverse order. हिमांशी अभी पूछ रही थी कि चेंजिंग सिचुएशंस में नए मीडियम्स कितनी भूमिका निभाएंगे. तो आई एम श्योर मैंने नए मीडियम्स की भूमिका पे भी बात की थी और कितनी उसकी लिमिट है, कितनी भूमिका वो निभा सकते हैं और कितनी नहीं निभा सकते हैं. बट वी हैव टू मेक श्योर कि कोई भी मीडियम, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, फोन हो या इंटरनेट हो, पर्सनल क्लासरूम में दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ने का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते हैं. क्योंकि पढ़ना सिर्फ और सिर्फ किताबों से नहीं होता है, पढ़ना किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं होता है. 40 बच्चों के साथ बैठना, उनके साथ उठना बैठना, उनसे जानना, उनको अपने बारे में जानने के, उनके साथ व्यवहार करना, वो भी हमारे सीखने का एक हिस्सा है. इंटरनेट पे बैठ के वो सब नहीं हो सकता है. तो ये, लेकिन जरूर जिस तरह के अभी माहौल आएगा उसमें इन सब की भूमिका होगी, पर मेरी कोशिश होगी कि वो उनको रिप्लेस ना करें, क्योंकि अगर रिप्लेस किया तो एजुकेशन को बहुत नुकसान होगा. दूसरा, एसडी पब्लिक स्कूल से देवांशी ने पूछा था, हाउ इज गवर्नमेंट प्लानिंग टू अर्न कॉन्फिडेंस अगेन. देवांशी, गवर्नमेंट अभी और हम सब लोग, सोसाइटी सब मिलके स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक बार इस कोरोना को, एक बार किस पीक तक ये जाता है, वी डोंट नो. दुनिया के अलग अलग देशों का अलग एक्सपीरियंस है. अभी इंडिया के कुछ सिटीज में अभी पीक पर है. लोग कह रहे हैं कि जिन सिटीज में अभी पीक पर है उसमें धीरे धीरे एक ग्राफ स्टेगर होगा और फिर नीचे जाएगा, फ्लैट ग्राफ होगा और उसके बाद नीचे जाएगा. लेकिन कुछ और शहरों में, कुछ गाँवों में फिर उसका ग्राफ बढ़ेगा. तो इंडिया इज ए बिग कंट्री. तो अभी देश में कोरोना किस रूप में आगे बढ़ता है और कहाँ जाके ठहरता है, इस पे निर्भर करेगा. बट हैविंग फेथ इन पेरेंट्स एंड दे हैव फेथ इन मी ऑल्सो, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम एजुकेशन को भी नुकसान नहीं होने देना चाहते, लेकिन किसी बच्चे को किसी एडमिशन की वजह से किसी स्कूल में आने या उसके लिए भी ऐसे फोर्स नहीं करेंगे कि उसको कोई नुकसान कोरोना की वजह से हो. मुझसे अभी अंशिका पूछ रही थी कि एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, तो पोस्ट लॉकडाउन क्या है. आई थिंक आई आंसर्ड दिस इन देवांशीज क्वेश्चन कि अभी नोबडी नोज इन आवर कंट्री. बहुत सारे देशों में कोरोना अभी फ्लैट हुआ है, अमेरिका, यूरोप, इटली जैसे देशों में. लेकिन वहां भी अब क्या चल रहा है उससे हम सब लोग भी सीख रहे हैं. एक नई बीमारी है, स्केल बहुत बड़ा है. कभी मानव जाति ने इस तरह का स्केल पर कोई महामारी देखी नहीं है. कोई सरकार, कोई सिस्टम, कोई स्कूल, कोई परिवार इतने बड़े स्केल पर इसको झेलने के लिए कहीं तैयार नहीं है. कोई पहले से तैयार हो भी नहीं सकता था. किरत ने मुझसे पूछा था कि सिलेबस के बारे में जो रूमर्स हैं तो उन पर, उनसे कैसे बचें, उसमें सच क्या है कैसे पता चलाएं. तो किरत, आई वुड लाइक टू से कि आपके टीचर्स और आपके प्रिंसिपल सबसे ऑथेंटिक सोर्स हैं आपके लिए इंफॉर्मेशन का. व्हाट्सएप पे दुनिया के सबसे बड़े झूठ फैलते हैं, इंटरनेट पे सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है. इसलिए अपने टीचर्स और अपने प्रिंसिपल पे भरोसा करिए. उनसे ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सिलेबस के बारे में आपको कोई नहीं दे सकता है. सरकार भी जब कोई चीज बच्चों तक कम्युनिकेट करना चाहती है, प्रेस के माध्यम से भी बात करती है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बात करती है, लेकिन एजुकेशन के बारे में कुछ भी ऑथेंटिक कहने के लिए जरूरी है कि हम टीचर्स और प्रिंसिपल्स के माध्यम से ही आप तक पहुंचाएंगे. अर्पिता ने मुझसे पूछा था कि पोस्ट अगस्त का प्लान क्या है. आई थिंक आई आंसर्ड दैट कि लेट अस सी हाउ कोरोना proceeds, how things unfold in future. अभी कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि ये अनसीन, अनहर्ड तरह की सिचुएशन है, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है. मानसवी ने मुझसे पूछा था कि मेरे पेरेंट्स पहले ऑनलाइन को अनसेफ बोलते थे, अब सेफ बोल रहे हैं. बेटा, आप अब बड़ी हो गई हो, जब आप और बड़ी हो जाओगी तो आपको बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी सेफ बोलेंगे पेरेंट्स. आपने घर में कभी किचन में रखा हुआ चाकू देखा है? छोटे से बच्चे को सब समझाते हैं इसको हाथ मत लगाना, लग जाएगा.
लेकिन एक समय आता है कि उसी बच्चे को सिखाते हैं कि नहीं नहीं अब तुम कुछ फ्रूट्स काटना सीख लो, है ना, उसी चाकू को देके आपको कहते हैं। तो कोई भी चीज सेफ और अनसेफ सिर्फ समझ की कमी या स्किल्स की कमी के कारण होती है। अगर आप में समझ और स्किल है तो दुनिया की हर चीज आपके लिए सेफ है और आप उसको यूज कर सकते हैं। आपके अगर आप में समझ नहीं है या आपके अंदर उसको यूज करने के स्किल्स नहीं है तो वो यूजलेस भी हो सकती है और अनसेफ भी हो सकती है। तो आप समझदारी से इस्तेमाल करिए, आपके पेरेंट्स आपको खुद आगे बढ़ाएंगे और ये इस बात का प्रमाण है। थैंक यू। We can have 2 more questions quickly and then I have to wind up. जी सर। सर एक और बच्ची है लावण्या मंगला, शी इज फ्रॉम महाराजा अग्रसेन आदर्श पब्लिक स्कूल पीतमपुरा। यस लावण्या मंगला, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन डियर। एंड नेक्स्ट इज एक प्रासिता शर्मा है DL DAV पीतमपुरा से। आप अपना प्रश्न करें बेटा। नेक्स्ट। Good afternoon, sir. Yes, Lavanya. I can see you. Good afternoon, sir. My name is Prasita Sharma. I am a student of class 9th DLDAV Model School, Pitampura. My question to you is, should yoga and meditation be a regular activity in school timetable to beat this turbulent time? Okay, great question. Thank you. एक और हाँ जी, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल अशोक विहार से दिशा यादव, आप अपना प्रश्न कर सकती हैं। दिशा यादव। Lavanya Mangla. Good Lavanya, yes, Lavanya. Sir, my question is that in this hard time, we had a good time for study time, but still it has a psychological effect on us that may be frustrating sometimes. So how do we deal with this thing? I understand this, yeah. आपने किसी और को भी मैम लाइन पे लिया था? दिशा यादव। Good afternoon, sir. The last question. Okay, sir. Yes, Disha. Sir, my question to you is it possible to divide the syllabus for school examination into 2 parts? One which is very relevant for the class and another which is of journal form. The latter can be dropped or can be easily done by the students. Thank you, Disha. मुझे लगता है मैंने इसका आंसर दिया कि सिलेबस में जो चेंज मैं सोच रहा हूँ वो सिर्फ 2 हिस्सों में बांटने का नहीं, बल्कि मैं सोच रहा हूँ क्योंकि उसको एग्जाम पैटर्न के हिसाब से एक हिस्से में और कुछ को दूसरे हिस्से में बांटे तो कहीं ना कहीं रोट लर्निंग जारी रहेगी। मैं चाहता हूँ कि जो आपके टीचर्स आपको सिखाते हैं रोजाना उसका कंटिन्यूस इवैल्यूएशन चलता रहे और आपको किसी एक समय पे 4 चैप्टर पढ़ के 2 महीने की तैयारी करके अलग से एग्जाम देने की जरूरत की जगह आपका कंटिन्यूस लर्निंग और टीचर्स के अंदर ये एबिलिटी हो कि वो आपने क्या सीखा अलग अलग तरीके से उसको समझ सकें, उसको इवेल्युएट करते रहें, वो बेहतर सॉल्यूशन होगा मेरी राय में। बट इसमें आप सब लोगों की राय भी मुझे मानने इम्पोर्टेंट रहेगी। आप सबसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि लेट्स नॉट अंडरस्टैंड कि दिस इज द फाइनल डिस्कशन दैट वी आर हैविंग। आप सब लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से भी या सीधे भी और अनीता जी के माध्यम से भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर as many questions as possible. My office will be in touch if अगर कोई बहुत great idea के साथ आप मुझे कोई input देंगे तो मेरा ऑफिस भी आपसे बात करना चाहेगा। प्रतीक्षा ने पूछा था कि योगा और मेडिटेशन को इस टफ टाइम में हम यूज कर सकते हैं क्या? प्रतीक्षा, आई वुड लाइक टू से कि अगर हम योगा और मेडिटेशन को यूज करें नॉन टफ टाइम में, जब टफ टाइम नहीं होता है तो शायद जो टफ टाइम होता है उसकी टफनेस कम हो जाती है, क्योंकि हमने योगा और मेडिटेशन बहुत अच्छे से यूज नहीं किया, इसीलिए टफ टाइम हमारे लिए और टफ बनता चला जाता है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि योगा और मेडिटेशन को हमेशा यूज करें, नॉट ओनली इन टफ टाइम्स, एवरी डे, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में जितना आप इसको यूज करेंगे उतना आपके लिए आने वाले समय में भी जो टफ टाइम्स आएंगे, कोरोना इज नॉट द अल्टीमेट टफ टाइम, आपके पास हमेशा जीवन में टफ टाइम आते रहेंगे और योगा और मेडिटेशन हमेशा आपको हेल्प करेगा, बट ओनली व्हेन यू डू इट इन नॉन टफ टाइम।
इन दोज टाइम विच आर नॉट कंसिडर्ड टू बी टफ। उस वक्त अगर आप करेंगे, उस वक्त अगर योगा और मेडिटेशन आपको टफ लगा तो फिर टफ टाइम में आपका मदद नहीं करेगा। आपने लावण्य आपने पूछा था गुड टाइम टू स्टडी, आपको पढ़ने का थोड़ा सा समय मिला अच्छे से, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, इसीलिए मैंने जहाँ से बात शुरू की थी वहीं शायद हम खत्म भी कर रहे हैं कि अब सब बच्चे और सब टीचर्स सोच रहे हैं कोई तो ले आओ वो मंडे यार जिस दिन हम कहें कि आज सुबह स्कूल जाना है। थैंक गॉड आज मंडे है। हम हमेशा सोचते थे ओ माय गॉड आज मंडे है, तो कोई तो ले आओ। ये सबके साथ है, ये आपके नहीं, मैं बहुत सारे इंटरनेशनल एजुकेशनिस्ट के भी संपर्क में रहता हूँ, वो लोग भी ये कहते हैं उनके देश में भी यही है, हमारे देश में भी यही प्रॉब्लम है, मेरे घर में भी यही प्रॉब्लम है, हम सबके यहाँ ये प्रॉब्लम है। तो बट इस टाइम को भी हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं कुछ नया सीखने के लिए। और जैसा प्रतीक्षा बात कर रही थी कि मेडिटेशन और इमोशनल लर्निंग पे हम थोड़ा सा समय लगाएं, तो जितनी मेहनत हम नॉर्मल टाइम में लोगों की बात हम इधर उधर से सुनते हैं, पेरेंट्स से लेके, कलीग्स से लेके, टीचर्स से लेके, उसको फिर घर में बैठ के अंडू करते हैं अपने माइंड में जो इम्प्रेशन पड़ते हैं, उतनी मेहनत अगर अभी हम थोड़ा सा इमोशनल लर्निंग्स और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पे कर लेंगे तो वो बाद में काम आएगा। बट आई रियली एंजॉयड टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई वुड हैव मोर टाइम। मैं और भी बात करना चाहता था बट माई टाइम इज नॉट अलाउइंग दैट मच। 1000 बच्चों से बात करना ऑनलाइन अपने आप में एक बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी। अनिता जी उसके लिए, इन्हें मिश्रा जी और अनुपमा जी, संजय जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स, यू आर माई hope, you are my future. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपका हार्दिक आभार। इससे पहले कि मैं संजय जी को धन्यवाद ज्ञापन हेतु इनवाइट करूं, सर एक उर्दू कपलेट है, शेर है उर्दू का, वो करती हूँ कि हम कस्टोडियंस हैं, ये बच्चों के लिए है कि आओ करे मिलकर नूर की बिजली तकसीम, आओ करे मिलकर नूर की बिजली तकसीम, चमक तुम में रहे बच्चों मेरे नौनिहाल और तड़प हम में रहे। धन्यवाद बहुत बहुत। और संजय जी आप धन्यवाद ज्ञापन हेतु आइए। यहाँ उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। हृदय की गहराइयों से मैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री माननीय श्री मनीष सिसोदिया जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने अपने शिक्षाप्रद उद्बोधन से इस वेबिनार के साक्षी हजारों छात्र छात्राओं, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों एवं अभिभावकों का मार्ग प्रशस्त किया। आज कोरोना संकट काल के दौरान भविष्य की स्कूली शिक्षा एवं इससे जुड़े विभिन्न आयामों के बारे में समाज में एवं सभी हितधारकों के मन में बहुत अनिश्चितता का माहौल है। आपके प्रेरणादायी संबोधन ने न केवल छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों के मन में उठ रही शंकाओं को दूर किया है, वरन भविष्य की शिक्षा के लिए एक आशा की किरण दिखाई है। सर, हमें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में जब भी स्कूल खुलेंगे, आपके कुशल दिशा निर्देशन में सभी स्कूल कोरोना से सुरक्षा से जुड़े सभी मापदंडों का पालन करते हुए दिल्ली के लाखों बच्चों के जीवन को प्रकाशमय बनाने के लिए पुनः प्रयासरत रहेंगे। भविष्य की शिक्षा से संबंधित आपके ऊर्जावान विचार एवं समग्र दृष्टिकोण हमें आश्वस्त करते हैं कि आपके नेतृत्व में हम सब मिलकर शिक्षा की निरंतरता एवं गुणवत्ता शिक्षा को पुनर्स्थापित करने में अवश्य सफल होंगे। पुनः आपके विचारशील एवं शिक्षाप्रद उद्बोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद। मैं श्री विनय मिश्रा जी का भी छात्र छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस वेबिनार से फेसबुक के माध्यम से हजारों स्कूली बच्चे एवं उनके माता पिता जुड़े, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे पास बच्चों द्वारा प्रेषित 1000 से भी अधिक प्रश्न आए थे। सभी प्रश्नों को इस वेबिनार में स्थान देना संभव नहीं था, परंतु मुझे विश्वास है कि सभी बच्चे एवं उनके अभिभावक उप मुख्यमंत्री जी के विस्तृत उद्बोधन से आश्वस्त हो गए होंगे। इस सत्र के साक्षी विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों का भी इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी के लिए विशेष आभार।
एसडी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता शर्मा एवं प्रबंध समिति का इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। फोरम ऑफ पब्लिक स्कूल की अध्यक्षा सुश्री अनुपमा भारद्वाज, सभी पदाधिकारीगण और कार्यकारिणी के सदस्यों का कार्यक्रम में सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद। इस सत्र को सफल बनाने के लिए आप सबका पुनः हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य के हमारे कार्यक्रमों और प्रयासों में हमें उप मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन इसी प्रकार मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस वेबिनार का समापन आशा का संदेश देने वाले इस शेर को सुनाकर करता हूं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबरा, ना हो मायूस न घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हार्दिक धन्यवाद। Thank you so much, Sanjay sir, Anupama ji, Sisodia ji's office, everybody who has facilitated this, and Dr. Amit Kumar Suman, he's professor from Karodimal College. He also guided us in this. And I thank my hearty thanks to all principals and all kids who are here and their parents too. And once again, I would like to tell you that if you really want, if you want to see the telecast again, you can visit the Facebook page of either SD Public School Pitampura or ASDS Dream Big. Thank you very much to all of you. बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी।